Yes, students, in this session we have discussed gravitational potential energy. Gravitational potential energy of a body is equal to the amount of work done to bringing a body from infinity to that point. Yes, now look, that is the earth whose mass is capital M. We consider earth as a sphere, and for a sphere the center of mass for a sphere is its geometrical center. Mass of earth is capital M, so it lies at the center. Capital M mass lies at the center of the earth, which is the center of mass of the earth. And at point P we want to determine value of gravitational potential energy of a body. Yes, so distance from O to P is capital R. Now, according to definition, we want to calculate the amount of work done to bringing a body from infinity to point P. So, we divide the infinite distance up to a small elementary portion P, Q, R, S, T, so on, and each elementary portion have a distance dx. Each elementary portion have a distance dx. Now, body moves from infinity and cover dx distance. When body smaller mass of body reaches at a t point, and when it moves from t to s, it cover dx distance. O to t distance is x. Then work done by the body to move from T point to S point is work done dw equal to F into dx. Now F is the gravitational force acting between capital M and small m. S separated distance x, so dw equal to capital G capital M small m upon x square into dx. Yes, now mass moves from infinity, cover dx distance, and to cover each dx distance it perform work done dw. Now total work done to move from mass small m to bringing a mass of body of mass small m from infinity to point P is total work done. We get total work done to move mass small m from infinity to a point P yes, dw integration, we do integration dw equal to integration capital G capital M small m upon x square into dx. Limit of dw integration 0 to w, and limit of g upon x square into dx infinity to capital R. Now we do the integration. dw have integration w, and yes, square bracket limit lower limit 0 upper limit w, and gm are constant. We take outside the integration, and 1 upon x square into dx have a value of integration minus 1 upon x, limit infinity to capital R. Now put the limit, so in place of w we put w, so w minus 0 equal to capital G capital M small m bracket, in place of x we put r, so minus 1 upon capital R minus bracket minus 1 upon infinity 0, so w equal to capital G capital M small m bracket minus 1 upon r plus 0.
So work done W equal to minus capital G capital M small m upon capital R. Equation 2, that is equation 1. This work done is stored in the form of gravitational potential energy. So gravitational potential energy of body of mass small m, capital U equal to W. So capital U equal to minus capital G capital M small m upon capital R. yes. तो देखो बच्चों, आज हम ग्रेविटेशन में पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के इक्वल होती है जो बॉडी को इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में किया जाता है। किसी बॉडी को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन या एनर्जी रिक्वायर्ड को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। अब देखो बच्चों, हमने कंसीडर किया अर्थ जिसका मास कैपिटल है। अर्थ को यदि मैं स्फीयर कंसिडर करूं तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। तो अर्थ का सेंटर O है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अर्थ का मास टोटल मास कैपिटल M है, तो कैपिटल M इसके सेंटर ऑफ मास पे कैपिटल M सेंटर ऑफ मास पे O पॉइंट पे लाई कर रहा है कैपिटल M मास। अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी जिसका मास स्मॉल m है P पॉइंट पे डिटरमाइन करना चाहते हैं। O से P तक की डिस्टेंस कैपिटल R है। यस, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी से स्मॉल m बॉडी को P पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट P। तो हमने इन्फिनिटी तक की डिस्टेंस को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। एलिमेंट्री पोर्शंस में ईच एलिमेंट्री पोर्शन की डिस्टेंस dx है। अब स्मॉल m मास dx डिस्टेंस कवर करते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा dx वर्क डन टेक प्लेस हो रहा है, किसी टाइम में वो t पॉइंट पे पहुंचा और जब t से स्मॉल m मास s पॉइंट पे आएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगेन dx डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो dx डिस्टेंस कवर करने में कितना वर्क डन होगा, dw इक्वल टू f इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है ये f ग्रेविटेशनल फोर्स है कैपिटल M और स्मॉल m मास का, जिनके बीच की डिस्टेंस x है। तो हम कैपिटल F को पुट कर सकते हैं कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर। अब dx डिस्टेंस कवर करने में उसे वर्क डन कर रहा है dw। अब dx डिस्टेंस कवर करते हुए वो इन्फिनिटी से P पॉइंट तक आया, तो सभी dx डिस्टेंस को कवर करने में जो वर्क डन dw हो रहा है, सभी वर्क डन dw को ऐड करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो टोटल वर्क डन होगा सभी एलिमेंट्री पोर्शन को कवर करने में किए गए वर्क डन के सम अप के इक्वल, एडिशन के इक्वल। एडिशन की दूसरी फॉर्म होती है इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इन्फिनिटी से बॉडी को P पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हो रहा है, इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन gm अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिमिट इन्फिनिटी टू r, लिमिट 0 टू w, इंटीग्रेशन w का w आ गया, gm अपॉन gmm कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिए, मल्टीप्लाई में, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट r। अब लिमिट पुट की तो x के प्लेस पे r पुट किया, फिर माइनस x के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट किया, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आ गया, ये वर्क डन आया माइनस gm अपॉन r। ये वर्क डन बॉडी ने किया है इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में, ये वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी कैपिटल U इक्वल टू W, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। नाउ नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। Yes, now next topic gravitational potential. Gravitational potential at a point is defined as the amount of work done to bringing a unit mass from infinity to point to that point. That work done is said to be gravitational potential. We can also say gravitational potential
at a point is equal to the gravitational potential energy of a unit mass of body placed at that point. Yes, so let us consider formula of gravitational potential. V equal to W upon M. Yes, W is the amount of work done to bringing a small m mass body from infinity to point P. So small m body require W amount of work done to bringing from infinity to point P. So 1 kg body required work done W upon M from infinity to point certain point. So that W upon M is the amount of work done to bringing a unit mass from infinity to point. So that work done is equal to gravitational potential. Gravitational potential is a scalar quantity and its SI unit is joule per kg. Now we want to derive the formula of gravitational potential. So look, as previous article we have discussed, that is a earth and mass of earth is capital M, which lies at its center, capital M mass at point O. O is the center of earth, capital M mass lies at the center of earth. Yes, center of mass of earth. We consider earth as a sphere, and for sphere geometrical, its center of mass lies at its geometrical center. So whole mass of earth lies at its geometrical center, which is also the center of mass. Due to that capital M mass of gravitational field is produced. At that gravitational field at a point P, we want to determine gravitational potential. So first of all, we calculate the amount of work done to bringing a body from infinity to point P. So we divide the infinite distance into a small elementary portion, and each elementary portion of dx distance we already moved, dx cover dx distance and reach at a t point. When it further move dx distance, it perform work from t point to s point, perform work done dw equal to f into dx. Put the value of f, g mm upon x square. Now total work done to bringing a body from infinity to point P, we integrate 0 to w, infinity to r as previous article. So value of integration when we solve it, w equal to minus gm upon r. Then gravitational potential at point P, gravitational potential V equal to W upon M. Put the value of W minus capital G, capital M, small m upon R upon small m cancel. So V equal to minus capital G, capital M upon small r. Yes, that is the formula of gravitation. Capital M upon capital G, capital M upon R. तो देखो बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी पॉइंट का, ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी से अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट मास ऑफ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी से यूनिट मास की बॉडी को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वो उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं किसी पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट पे रखे यूनिट मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। अब हम फार्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का V इक्वल टू W अपॉन स्मॉल m। स्मॉल m मास को इन्फिनिटी से लाने में वर्क डन हो रहा है W, तो 1 kg बॉडी को, यूनिट मास की बॉडी को 1 kg बॉडी को लाने में वर्क डन होगा W अपॉन m, और 1 kg बॉडी को लाने में जो वर्क डन होता है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, इसलिए W अपॉन m फार्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। इसकी SI यूनिट जूल पर kg है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हम फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। तो देखिए, अर्थ जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है, अर्थ को हम स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, तो अर्थ का मास कैपिटल M, उसके सेंटर ऑफ मास जो कि उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहां लाई कर रहा है कैपिटल M मास। इस कैपिटल M मास की वजह से अर्थ के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इस ग्रेविटेशनल फील्ड में P पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमने इन्फिनिटी तक की, तो P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए हमें स्मॉलर मास को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में वर्क डन कैलकुलेट करना होगा।
इससे पहले वाले आर्टिकल में जो हमने स्मॉल एम मास को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक वर्क डन किया था, वैसे ही अभी यहाँ ड्राइव होगा। यस, तो उसके लिए हमने इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसे एलिमेंट्री पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। ईच एलिमेंट्री पोर्शन की डिस्टेंस dx है। अब स्मॉल एम मास dx डिस्टेंस करते हुए आगे बढ़ रहा है। जब स्मॉल एम मास t से s गया तो वर्क डन डिस्टेंस कवर की dx, तो वर्क डन हुआ dw इक्वल टू f इंटू dx। तो dw f है ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल एम और स्मॉल एम मास का, उसकी वैल्यू रख दी कैपिटल G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अब टोटल वर्क डन, अब dx डिस्टेंस कवर करता हूँ, मास आगे बढ़ेगा, ईच एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ वर्क डन dw होगा। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में हमने इंटीग्रेट कर दिया, 0 टू w इन्फिनिटी टू r, इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट की, रिजल्ट आया w इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। इस स्मॉल एम मास को लाने में वर्क डन हो रहा है माइनस कैपिटल G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो यूनिट, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P होगा W अपॉन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू W अपॉन स्मॉल एम। W की वैल्यू रख दी इक्वेशन 2 से, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, सो V इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल एम अपॉन कैपिटल R। ये फॉर्मूला है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एस्केप एनर्जी is now next topic, escape energy is, look, when we thrown that marker in upward direction, marker goes rise up, reach at a certain height and then return back, and if we again push the marker in upward direction with large velocity, marker moves up and reach more vertical height, come in rest and then return back. Now, if we give such amount of energy to the body, that body escape out from the gravitational field and does not return back to the earth surface or a surface of planet, then this minimum amount of energy is called escape energy. Escape energy is the minimum amount of energy required to give the body so that body escape out from the gravitational field of planet and does not return back to the earth surface or a surface of planet. That minimum amount of energy is called escape energy. Escape energy is numerically equal to minus gravitational potential energy, minus we take sign because that amount of energy we supply to the body. Yes, so escape energy is equal to minus capital G capital M small m upon capital R. Yes, minus minus plus, so capital G capital M small m upon R, escape energy. Yes, escape energy, where capital G universal gravitational constant, capital M mass of earth or planet, small m mass of body, capital R is the distance between capital M and small m if body placed at the surface of earth, then capital R is the radius of earth. तो देखो बच्चों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्केप एनर्जी। देखिए, इस मार्कर को यदि मैं एनर्जी देके वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन करता हूँ तो मार्कर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाएगा और फिर एक सर्टेन हाइट कवर करके रिटर्न बैक होगा। यदि मैं इसे और वेलोसिटी दूँ तो मार्कर फिर और हाइट ऊपर जाएगा, लेकिन रिटर्न बैक होके फिर वापस आएगा। ऐसे ही यदि मैं एनर्जी बढ़ाता रहूँ तो बॉडी की हाइट, जो बॉडी है वो और हाइट तक जाती रहेगी, लेकिन फिर रिटर्न बैक होकर वापस आएगी। यदि मैं बॉडी को इतनी मिनिमम एनर्जी दे दूं कि बॉडी अर्थ या प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप आउट करते हुए बाहर चली जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, तो बॉडी रिटर्न बैक नहीं होगी, बॉडी स्पेस में चली जाएगी। वो मिनिमम एनर्जी जिससे बॉडी को थ्रोन किया जाए और बॉडी प्लेनेट या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए और वापस रिटर्न बैक ना हो, उस मिनिमम एनर्जी को कहते हैं एस्केप एनर्जी।
एस्केप एनर्जी न्यूमेरिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, तो एस्केप एनर्जी इक्वल टू माइनस यू, यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं बॉडी को, प्रोवाइड कर रहे हैं। माइनस तो माइनस यू की वैल्यू रखती, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये एस्केप एनर्जी आई कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। कैपिटल जी अब जानते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ या प्लेनेट, स्मॉल एम बॉडी का मास, कैपिटल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल एम और स्मॉल एम, और यदि बॉडी अर्थ की सरफेस पे या प्लेनेट की सरफेस पे तो आर रेडियस ऑफ अर्थ और प्लेनेट। नाउ the minimum velocity, now we discuss next topic, escape velocity is escape velocity, the minimum velocity at which body thrown in the upward direction and body escape out from the gravitational field of planet, that minimum velocity is called एस्केप वेलोसिटी। यस, हम डिस्कस करें एस्केप वेलोसिटी। तो देखो जब बच्चों जब हम एस्केप एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस समय जो बॉडी को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिली तो वेलोसिटी उसे प्रोवाइड होगी। वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे बॉडी को थ्रोन किया जाए और बॉडी प्लेनेट या अर्थ के सरफेस, प्लेनेट या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप आउट हो जाए और रिटर्न बैक ना हो, उस मिनिमम वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। At escape velocity, kinetic energy is equal to escape energy yes, so kinetic energy, if escape velocity is v, then kinetic energy is half m into v square equal to capital G capital M small m upon r, small m cancel, so v in suffix e equal to 2 capital G capital M upon r v square, that's why yes, so v equal to under root 2 capital G capital M upon r, that is the formula of escape velocity. Look, in this formula capital M is the mass of earth or planet, capital R is the radius of earth or planet, capital G universal gravitational constant, V escape velocity. Look, in this formula there is mass of body is not there, that's why escape velocity independent from the mass of body. It means for 10 kg body and for 2 kg body escape velocity remain same. Yes, now that is the equation 1. Now put in equation 1 capital G capital M equal to small g into capital R square, then VE equal to under root 2 small g capital R square upon R cancel out, so V equal to under root 2 small g into capital R, इस फॉर्मूले को बॉक्स में लिख दीजिए, इक्वेशन 2. नाउ फॉर अर्थ पुट इन इक्वेशन 2 स्मॉल g इक्वल टू 9.8 meter per second square and capital R equal to 6400 into 10⁻³ meter. When we put these values, then we escape velocity at Earth's surface 2 into 9.8 into 6400 into 10⁻³. So escape velocity we will calculate 11.2 into 10⁻³ meter per second, or escape velocity equal to 11.2 kilometer per second. Yes, किलोमीटर पर सेकेंड. तो देखो बच्चों, जब आप किसी बॉडी को एस्केप वेलोसिटी थ्रोन करते हैं तो उस समय काइनेटिक एनर्जी बॉडी की एस्केप एनर्जी के इक्वल होती है. तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एस्केप एनर्जी.
सिंप्लीफाई किया तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gm अपॉन कैपिटल आर, एस्केप वेलोसिटी v इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2 कैपिटल जी कैपिटल अपॉन आर, कैपिटल m अर्थ का मास या प्लेनेट का मास है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ या प्लेनेट है। देखिए इस फार्मूले में बॉडी का मास इंक्लूड नहीं है, इंडिपेंडेंट है ये फार्मूला बॉडी के मास से। इसका मतलब 2 kg के बॉडी के लिए और 10 kg बॉडी दोनों के लिए एस्केप वेलोसिटी सेम रहेगी। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है प्लेनेट के मास पे और प्लेनेट की रेडियस पे, मतलब शेप और साइज और मास पे। हमने कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम को स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर पुट किया, कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 स्मॉल जी कैपिटल आर। अब यदि हम अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो हमने अर्थ की सरफेस के लिए जी की वैल्यू रख दी, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया 11.2 इंटू 3 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर में एस्केप वेलोसिटी v इज एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अर्थ की सरफेस पे नियरली एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर per second. So students, in this session we have discussed escape energy, escape velocity, gravitational potential and gravitational potential energy. Thank you.